I'm going to talk to you about 2-3 things today. और 2-3 बातें आज आपके साथ बांटना चाहता हूँ. Can I get my laptop? No, this is not the one. I think he has taken taken it out. Yeah. Jesus. 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 Hallelujah. 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 Amen. I wanted to talk to you about few things today which is very, very important. और आज कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता था. God has brought us all today to worship Him. और आज परमेश्वर हम सबको यहाँ पर उसकी आराधना करने के लिए लेकर आया है. And something that we all, we shared during the testimony, one thing that I understand is the spiritual warfare and spiritual attacks. और साक्षियों से जो एक बात मुझे समझ में आई वो ये थी कि आत्मिक युद्ध और आत्मिक हमले. We all go through spiritual warfare. और हम सब आत्मिक युद्ध से गुजरते हैं. Our country has borders, right? और हमारे जो देश है उसकी एक सीमा है. Who stands at the border? और वो सीमा पर कौन खड़ा रहता है? Why are they standing there? और वहाँ पर क्यों खड़े रहते हैं? If they don't stand there, what happens? और अगर वहाँ पर सैनिक नहीं खड़े होंगे तो क्या होगा? The enemy can come inside. जो दुश्मन है वो प्रवेश कर लेगा. So do they stand only during the daytime? तो क्या वो सिर्फ दिन के समय वहाँ पे खड़े रहते हैं? Huh? They stand 24 hours. 24 घंटे वहीं पे खड़े रहते हैं. Few years back, कुछ साल पहले there was a terrorist attack in our army camp. और कुछ साल पहले हमारा जो आर्मी कैंप है वहाँ पर एक आतंकवादियों का हमला हुआ था. You know why? आपको मालूम है क्यों? Why? क्यों हुआ था? Huh? Why was there an army attack? वहाँ पर क्यों हमला हुआ था? The soldiers were sleeping. जो सैनिक थे वहाँ पर वो सो रहे थे. What were the soldiers doing? सैनिक क्या कर रहे थे? And what happened? और क्या हो गया? There was an attack from the enemy in our army camp and many of our soldiers died. और उसका नतीजा क्या हुआ उनके सोने का? हमारी जो सेना दुश्मनों ने हमला बोल दिया और बहुत सारे जो हमारे सैनिक थे वो मार दिए गए. So what happens when we sleep? और जब हम सोते हैं तब क्या होता है? The devil does lot of things. शैतान बहुत सारी चीजें करता है. When our prayer life goes down, जब हमारा प्रार्थना का जीवन नीचे चला जाता है, कमजोर पड़ जाता है, the devil attacks us a lot. तब शैतान हमारे ऊपर बहुत हमले करता है. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. 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 You know, Amit said that whenever he wants to fast for few days, और अमित ने बोला कि जब भी वो फास्ट करना चाहता है कुछ दिनों के लिए, what happens? क्या होता है? There is always an attack. तब एक शैतान हमला करता है. When he doesn't fast and pray, the devil is fine. और जब फास्ट प्रार्थना नहीं करता है वो, तब शैतान को कुछ प्रॉब्लम नहीं है. Why does that happen? ऐसा क्यों होता है? The devil doesn't want him to pray. शैतान आपको प्रार्थना नहीं करने देना If he चाहता है. prays, what will happen? जब आप प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा? If he fasts and pray, what will happen? जब अमित फास्ट प्रार्थना करेगा तो क्या होगा? Huh? Yeah. Things will happen. Things will happen, right? What does the Bible say in Matthew 17:20? मत्तई 17:20 में वचन क्या कहता है? मत्तई 17:20.
Amen. Amen. What does it say? यहाँ पे When वचन you क्या कहता है? fast and pray, जब आप उपवास प्रार्थना करते there हैं are some demonic powers that get broken. There are some demonic powers that get defeated. जब आप उपवास प्रार्थना करते हैं तो शैतान की कुछ शक्तियां हार जाती हैं. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Amen. So it's very important for us to understand. It's very important for us to understand that we are in a spiritual warfare. और इसीलिए हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हम एक आत्मिक युद्ध में हैं. And in spiritual warfare, if we sleep, we will be defeated. और आत्मिक युद्ध में अगर हम सो जाते हैं तो हम हार जाते हैं. What does it say in 1 Peter chapter 5 verse 7 onwards? और पहला पत्रस 5 अध्याय और 7 वचन के आगे क्या लिखा है? पहला पत्रस 5 अध्याय 7 वचन के आगे. आमेन. Okay, आगे. What is the devil doing here? यहाँ पे शैतान क्या कर रहा है? क्या कर रहा है शैतान? खोज में है. Are you all reading? आपने सबने Turn वचन with me to पढ़ा? 1 Peter chapter 5 verse 8, right? Yeah, please read 1 Peter chapter 5 verse 8. What is the devil doing? यहाँ पे शैतान क्या कर रहा है? What is he doing here? यहाँ पे क्या कर रहा है He is शैतान? going around searching for someone. और वो घूम रहा है, किसी को ढूंढते हुए घूम रहा है. Whom is he searching और वो for? किसको ढूंढ रहा है? Why is he searching for? क्यों ढूंढ रहा है? Why is he searching? क्यों ढूंढ रहा है? कि फाड़ खाए. क्यों? To devour, right? उनको Now नाश करने के what लिए. did Jesus say in John 10:10? और यीशु मसीह ने यूहन्ना 10:10 में क्या कहा है? The thief comes to Steal, steal, kill and kill destroy. and destroy. शैतान मारने, घात करने, चोरी करने, घात करने व नाश करने के लिए आता So है. we need to understand the devil is our enemy. He is just going around looking for an opportunity to attack us. और जो शैतान है वो हमारा दुश्मन है और वो घूम रहा है ताकि वो उसको मौका मिल सके, ताकि वो हम पर हमला कर सके. He cannot attack you at will. He cannot attack you whenever he wants. और शैतान कभी भी हमारे पर हमला नहीं कर सकता. जब वो चाहे तब वो ऐसा नहीं He कर सकता. cannot attack you. वो नहीं कर सकता. Why? क्यों? You know the story of Job, right? आपको अय्यूब की कहानी मालूम है ना सबको? What does the Bible say? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? What did the devil say? शैतान ने क्या किया? परमेश्वर से क्या कहा शैतान ने? Turn with me to Job, अय्यूब chapter 1. पहला अध्याय Verse 10. उसका 10 वचन. अय्यूब 1:10. What does it say here? The devil is complaining to God. जो शैतान है वो परमेश्वर से तकरार कर रहा I है. want to attack Job मैं अय्यूब के ऊपर हमला करना चाहता because हूँ Job is a righteous person. क्योंकि वो एक धर्मी व्यक्ति है. Job is a prosperous वो person. एक समृद्ध व्यक्ति He है. is leading people in the way of righteousness. वो लोगों को धार्मिकता की तरफ He is doing लेकर जा your रहा है. ministry. वो आपकी सेवकाई कर रहा He है. is telling people about you. वो लोगों को आपके विषय में बता रहा I है. want to attack him, मैं उसके ऊपर हमला करना चाहता हूँ, but I am not able to find a way to attack him लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा है कि मैं उसके ऊपर कैसा हमला करूं, because there is a hedge around him. क्योंकि उसके चारों तरफ एक कुंपन बंधा हुआ है. I'm telling you, dear people of God, मैं बताना चाहता हूँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, the devil is looking for opportunity to attack you, शैतान आपके ऊपर हमला करने के लिए अवसर ढूंढ रहा but है, he is not able to attack you लेकिन फिर भी वो आपके ऊपर हमला नहीं कर पाता because है, there is a hedge of protection around you. क्योंकि आपके चारों ओर
परमेश्वर का कुंपन है, परमेश्वर की सुरक्षा है। When you are sleeping, जब आप सोते हैं, angels are standing around you. जो परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके चारों ओर खड़े हैं। When you are जब walking, आप चलते हैं, angels are going around you. परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके के साथ चलते हैं। When you are traveling, जब आप यात्रा करते हैं, angels are around you. स्वर्गदूत आपके चारों ओर The हैं। devil cannot attack you. शैतान आपके ऊपर हमला नहीं कर But सकता, the devil is looking for weak points in our lives. लेकिन शैतान ऐसे कमजोर समयों को ढूंढता है हमारे So जीवन what में। he does is, और वो क्या करता है? he tries to bring so many, he tries to bring temptations into our lives. तब वो हमारे जीवनों में जो मोह को लेकर आता है। When you are tempted and give in to temptation, और जब आप मोह में पड़ के हार मान लेते हैं, you know what happens? तब आपको मालूम है क्या? The devil get an opportunity to attack you. तब शैतान को मौका मिल जाता है कि वो हमारे ऊपर हमला कर सके। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। That's why it's very important. We need to be always on the guard. और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम हमेशा सुरक्षित रहें। Do not give place to the devil. Apostle Paul says in Ephesians. और शैतान को मौका मत दो, प्रेरित पौलुस कहते हैं इफिसियों की पत्री Turn में। with me to Ephesians chapter 4, इफिस का रास उसका 4 अध्याय निकालेंगे। verse 27. इफिसियों 4 अध्याय 27 वचन। Satan ko अवसर मत दो, do not give place, opportunity to the devil. और शैतान को अवसर मत दो। Now please understand here very carefully. एक बात को बहुत ध्यान से समझिए, The devil is roaming around like a roaring lion looking for whom he can devour. और शैतान एक गरजने वाले सिंह की तरह घूम रहा है ताकि ढूंढे किसको नाश कर सकता है। Hallelujah. Hallelujah. Are you all listening to me? This is very, very important. Please don't be distracted by anything. और ये बहुत जरूरी चीज है, किसी चीज से आप लोग अपना ध्यान मत You want to be a भटकने दीजिए। victorious Christian? क्या आप विजयी क्रिस्ती बनना You want चाहते to हैं? have experience the joy, peace and goodness of God in your family? क्या आप अपने परिवार में परमेश्वर की शांति, उसका आनंद और अपने उसके आशीषों को का अनुभव करना चाहते हैं? Please listen to this very, very carefully. इस चीज को बहुत ध्यान से The सुनिए। devil is your enemy. शैतान आपका दुश्मन है। He is roaming around looking for ways and opportunity to attack you. वो आप चारों तरफ घूम रहा है ताकि वो आपके ऊपर हमला करने के मौके ढूंढ सके। But what happens? लेकिन क्या होता है? Because the angels of the Lord are standing around you, क्योंकि परमेश्वर के जो स्वर्गदूत हैं वो आपके चारों तरफ खड़े हैं, the devil cannot attack you. शैतान आपके ऊपर हमला नहीं कर सकता, That's why he tempts you. और इसीलिए वो आपको मोह में डालता है। How he tempts you? और वो आपको मोह में कैसे He डालता है? knows your weaknesses. वो आपकी कमजोरी जानता है। He knows the weaker point in your life. वो आपके जीवन में आपकी कमजोरी क्या है वो जानता है। And when he knows the weak points, और जब वो आपकी कमजोरी जानता है, he tries to tempt you in the weaker areas. और वो आपको उन्हीं कमजोर क्षेत्र में उनके मुंह में डालता है। He tries to tempt you in the weaker areas. वो आपको उन कमजोर एरिया में मुंह में डालता है। That's why God, through Apostle Paul, is commanding, exhorting us और इसीलिए प्रेरित पौलुस परमेश्वर के द्वारा हमको प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहा है। do not give place to the devil. शैतान को मौका मत दो। Do not give place to the. Turn to the person next to you and say, do not give place to the अपने devil. पास बैठे हुए व्यक्ति की तरफ देखकर बोलिए कि शैतान को मौका मत दो। How many of you think that you are giving place to the devil? आप में से कितने लोग समझते हैं कि आप शैतान को मौका दे रहे हैं? कितने लोग समझते हैं? How do you give opportunity to the devil? आप शैतान को कैसे मौका देते I हैं? will tell you few of the things that we do to give opportunity to the devil. और मैं कुछ बातें बताता हूँ किस तरह से हम शैतान को मौका देते हैं। Please listen to that very, very carefully. बहुत ध्यान से सुनिए। And then if that is in your life, then what you need to do? You need to repent and set right.
और अगर वो चीजें आपके जीवन में हैं तो आपको पश्चाताप करना है और अपने जीवन को सुधारना है. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. If the devil is attacking your personal life, there is something wrong in your personal life that is giving place to the devil. और अगर शैतान आपके व्यक्तिगत जीवन के ऊपर हमला कर रहा है तो आपके व्यक्तिगत जीवन में कुछ ऐसी चीज है जो शैतान को मौका दे रही है. If there is something, if there is an attack in your family, there can be something wrong in your family that is giving an opportunity for the devil to attack you. और अगर शैतान आपके परिवार पे हमला कर रहा है तो आपके परिवार में कुछ ऐसी चीज है जो उसको अंदर आने का मौका दे रही है. If there is something in the ministry that if we are facing attack in the ministry, there is somewhere we are giving place to the devil to attack us. और अगर सेवकाई में कुछ If there is attack. अगर सेवकाई में कुछ हमला होता है तो सेवकाई में कुछ ऐसी चीज है जो शैतान को अंदर आने का मौका देती है. If your children are being attacked, there is something wrong in your family or in the life of your children that is giving place to the devil. और अगर आपके बच्चों के जीवन पे हमला हो रहा है तो कुछ तो भी आपके परिवार में आपके बच्चों के जीवन में कुछ ऐसी चीज है जो शैतान को अंदर आने का So मौका what देती do है. we need to do? तो हमको क्या करना है? If the hedge in your, if the compound, the fencing around your house, around your farm is broken, we need to repair the fence. और अगर आपके घर के चारों तरफ का आपके परिवार के चारों तरफ का कुंपण टूट गया है तो हमको उसको दोबारा बनाना है. Today is a time to set right our hedges, our fences. और आज का वो समय है कि जब हमको पुनर्बांधनी करनी है. Hallelujah. 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 The Bible says परमेश्वर का वचन कहता है the devil entered Judas. और परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान यूदा में समा गया. बराबर ना? Does the Bible say that? परमेश्वर का वचन ऐसे ही कहता है ना. How could the devil enter Judas Iscariot? और यहूदा के स्क्रोती के अंदर कैसे शैतान समा Who सकता is this Judas Iscariot? है? यहूदा स्क्रोती कौन था? He was a disciple of the Lord. वो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य था. He had power and authority to cast out devils. और उसमें वो सामर्थ थी और वो अधिकार था कि वो दुष्ट आत्मा को निकाल सके. The devil was afraid of Judas Iscariot. और शैतान उससे डरता था. When there were people who were affected by, oppressed by the demonic spirit, Judas Iscariot would go, speak, command, and the demonic spirits would leave. और अगर लोग दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोग उसके पास आते थे तो वो अपने अधिकार के द्वारा उनको निकाल देता But था. there is something that Judas Iscariot did that opened the door for the devil to enter into his life. लेकिन यहूदा इस्करियोती ने कुछ ऐसा किया जिसने शैतान के प्रवेश करने के लिए द्वार को खोल दिया This उसके जीवन Judas में. Iscariot was someone who was walking with Jesus all along. और यहूदा इस्करियोती एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा चलता था. He knew the word of Jesus. वो प्रभु यीशु मसीह के वचनों को जानता था. He knew how to pray. उसको प्रार्थना करना आता था. He knew how to read the Bible. उसको वचन पढ़ना आता था. But there was something wrong in his life that opened the door for the demonic spirit to enter into his life. लेकिन उसके जीवन में कुछ ऐसा था जिसने दुष्ट आत्मा को प्रवेश करने का मार्ग बना उसके You जीवन also may be coming to the church regularly. में. आप भी कलीसिया में नियमित रूप से आते You may be होंगे. praying regularly. आप प्रार्थना नियमित रूप से करते You may be होंगे. doing everything properly. आप सब कुछ अच्छी तरह से करते But होंगे. there could be one thing that you are not doing right. लेकिन एक चीज कोई होगी जो आप ठीक से नहीं कर रहे And हैं. because that one thing you are not doing right, और क्योंकि वो एक चीज आप ढंग से नहीं the कर रहे devil हैं, finds a way to come into your life. उसके द्वारा शैतान आपके जीवन में प्रवेश करने का मार्ग ढूंढ And लेता when है. he comes into your life, और जब वो आपके जीवन में आ जाता है, oh, he is going to devour you. वो आपको नाश कर He देगा. is going to destroy वो you. आपको नष्ट कर देगा. He is going to destroy your peace. वो आपकी शांति भंग कर So देगा, नाश कर देगा. it's very important for us to have the fencing intact, the fencing around our life. Our family has to be strong so that the enemy cannot enter into
into our lives. और इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो हमारे परिवार के हमारे जीवन की जो जो कुंपन है वो बिल्कुल सही रहे, ताकि शैतान को मौका ही ना मिल सके कि वो हमारे जीवन में प्रवेश कर पाए. Hello, Lord Jesus even told him, hey, be careful. But still he did not listen to the Lord Jesus. और प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा से कहा भी था कि सचेत रहो, लेकिन फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया. Sir, the biggest problem in the life of Judas was he was willing to run after money rather than God. और यहूदा की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वो पैसे परमेश्वर के बजाय पैसे के पीछे भागता था. How many of us need money? We all need money. हम सबको पैसे चाहिए. Don't we? हम सबको पैसे Yes चाहिए. or no? But we serve a God लेकिन हम ऐसे परमेश्वर की who आराधना has करते made हैं a different promise to us. जिसने हमसे अलग वायदे He किए says, हैं. seek ye first the kingdom of God and his righteousness. All these things shall be added unto you. परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी. You will experience abundance in your life when you put God first in your life. और अगर आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देंगे तो परमेश्वर आपको समृद्ध करेगा. Can't Lord Jesus give you, Judas, more than 30 pieces of silver? क्या प्रभु यीशु मसीह यहूदा को 30 चांदी के सिक्कों से ज्यादा नहीं दे सकता He था? can. वो He can. God can हाँ, give. परमेश्वर दे सकता था. But why was Judas running after the money? लेकिन क्यों यहूदा पैसे के पीछे भाग रहा That था? was a temptation from the devil. और वो शैतान की तरफ से उसके लिए मोह था. We know about Elijah the prophet. हम एलिया के बारे में एलिया भविष्यवक्ता के बारे में जानते He हैं. had a disciple named Elisha. और उसका एक शिष्य था जिसका नाम था अलीशा. And Elisha had a disciple named Gehazi. और अलीशा का एक शिष्य था जिसका नाम था गेहजी. Elijah was so powerful. एलिया जो था वो बहुत सामर्थी व्यक्ति था. Elisha got the double portion. और अलीशा को एलिया का दुगना भाग मिला. If Gehazi would be faithful, Gehazi would have got the double portion of Elisha also. और अगर गेहजी परमेश्वर के साथ और एलिशा के साथ विश्वास योग्य रहता तो उसको एलिशा का भी दुगना भाग अभिषेक का मिल सकता But था. the problem with Gehazi was he was running after the money. लेकिन गेहजी का समस्या यह थी कि वो पैसे के पीछे भाग रहा Today था. we are living in a world we are living in times when the world is running after money. आज के समय में हम ऐसे संसार में जीते हैं जब जो लोग हैं वो पैसे के पीछे भागते Even हैं. sadly, Christians are running after money. और सबसे दुख की बात यह है कि परमेश्वर के लोग जो क्रिस्ती कहलाते हैं वो भी पैसे के पीछे The भागते हैं. Bible says you cannot serve God and money. और परमेश्वर के वचन कहता है कि एक समय में तो तुम परमेश्वर और पैसे दोनों की सेवा नहीं कर सकते. Our God is a God who will prosper you, bless you, provide you, but provided you run after him, you seek him, you give him the first priority. परमेश्वर हमको सारी जरूरतों से संपन्न करेगा जब हम उसके पीछे पहले जाएंगे. So number one temptation the devil throws is पैसा. money. और सबसे पहली जो मोह शैतान हमारे जीवन में लाता है वो है पैसा. Be very careful. बहुत ध्यान God रखिए. will bless you. परमेश्वर आपको आशीष God देगा. is blessing you. परमेश्वर पहले ही आपको आशीष दे रहा है. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 So one of the way that the devil enters is when we begin to serve the spirit of mammon, spirit of money. और पहली जो चीज है जिसके द्वारा शैतान हमारे जीवन में प्रवेश करता है जब हम जो पैसे की दुष्ट आत्मा है उसके पीछे जाते The हैं. second thing is disobedience to God's guidance. और दूसरी चीज है परमेश्वर के जो मार्गदर्शन है उसकी अवज्ञा करना, उसकी आज्ञा ना मानना. When God gives you a clear guidance जब परमेश्वर आपको सही मार्गदर्शन करता है and you go against that, और उसके विरोध में आप जाते हैं, you may have other things, आपके पास दूसरी चीजें होंगी, but you will not have the presence of God, and when the presence leaves, the devil enters.
और आपके पास आपको दूसरी चीजें तो मिल जाएंगी, सांसारिक चीजें मिल जाएंगी, लेकिन परमेश्वर की जो उपस्थिति है वो आपसे दूर चली जाएगी। There was- और जब परमेश्वर की उपस्थिति आपसे दूर चली जाएगी तब शैतान प्रवेश कर There सकता was a king called King Saul in the Old Testament. है। और परमेश्वर के वचन में पुराने नियम में एक राजा था शाऊल करके, God anointed him. परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया, God lifted him. परमेश्वर ने उसको उठाया, ऊंचा किया, God had great plans for him. और परमेश्वर की उसके जीवन के लिए बहुत सारी योजनाएं थी। But you know what happened? लेकिन आपको मालूम है क्या हुआ? The disobedience of Saul not only destroyed his life, destroyed the life of his descendants also. और शाऊल का जो अवधि। आज्ञा करना नहीं था, उसने सिर्फ उसी के जीवन को नाश नहीं किया, उसके उसकी जो पीढ़ी थी, आने वाली पीढ़ी थी, उसको भी नाश कर दिया। Your disobedience will not only cost, the blessings of God in your life, it will also bring judgment upon your generations. आपकी जो अवज्ञा है वो सिर्फ आपके जीवन में ही को ही नाश नहीं करेगी, लेकिन आपके आने वाली पीढ़ी के जीवन में भी न्याय को लेकर आएगी। Are you understanding? आप If समझ रहे हैं Saul क्या? would have been obedient, अगर शाऊल आज्ञाकारी रहता his son Jonathan would have become king. तो उसका बेटा जो योनातान है वो राजा बन जाता। You know what had happened? लेकिन क्या हुआ? God was telling him again and again and again, but Saul was disobeying God repeatedly. और परमेश्वर शाऊल से बार बार कहता रहा, लेकिन शाऊल ने क्या किया? बार बार परमेश्वर की अवज्ञा की। And what happened? और क्या हुआ? The Bible says, परमेश्वर का वचन कहता है, turn with me to 1 Samuel chapter 16, पहला सामुएल उसका 16 अध्याय निकालेंगे। verse 14. पहला सामुएल 16 अध्याय 14 वचन। The spirit of the Lord departed from Saul. परमेश्वर का आत्मा शाऊल से दूर चला That is गया। a very, very dangerous place to be. और ये बहुत ही गलत स्थान है रहने के लिए। The moment you disobey God in fulfilling His purposes, the Spirit of God is going to depart from you. और जैसे ही आप परमेश्वर के योजनाओं को पूरा करने में परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं, तो परमेश्वर का जो आत्मा होता है वो आपसे दूर चला The जाता है। moment you say, no, I am going to go on my way, and stop doing the purposes of God, the devil will enter into your life. और जिस समय आप कहते हैं कि नहीं मैं अपने रीति से काम करूंगा और परमेश्वर की योजना के विरोध में चले जाते हैं, तब शैतान आपके जीवन में If you carry प्रवेश an करता है। anointing over your life, और अगर आप अपने जीवन में अभिषेक को लेकर चलते हैं, if you are doing a ministry in the church, और अगर आप परमेश्वर के कलीसिया में सेवकाई करते हैं, this is a warning that's coming to you. ये एक चुनौती है जो आपके पास आती है। The ministry belongs to the Lord. सेवकाई परमेश्वर की है, Anointing comes from God so that you can do the ministry. और जो अभिषेक है वो परमेश्वर की ओर से आता है कि ताकि आप सेवकाई कर सके। When you and I, when we try to do our own thing instead of doing what God wants us to do, we are opening place for the distressing spirit to enter into our lives. और जब हम परमेश्वर की आज्ञा को छोड़कर अपने मन से कुछ करने की कोशिश करते हैं, तब जो नाश की आत्मा, Distressing spirit, वो क्या लिखा है हिंदी या मराठी में? हिंदी में? दुष्ट आत्मा। In English it says distressing spirit, depressing spirit. इंग्लिश में लिखा है कि आशाहीन आत्मा, जो निराश करने वाली आत्मा प्रवेश कर जाती है। If you are distressed and depressed, अगर आप निराश हैं, come before the presence, repent, come before the presence of the Lord, repent and get right with God today. अगर आप निराश हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में आइए, पश्चाताप करिए और परमेश्वर से मदद मांगिए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And how did the depressing spirit leave? और जो निराशा की आत्मा है वो कैसे जाती है? Verse 18 onwards. 18 वचन. तेव्हा एक तरुण सेवकाने उत्तर दिले, पहा, मी बेथलेहेमकर
ओके 23 पढ़ लीजिए सिस्टर सीधा. First Samuel chapter 16 verse 23. Okay, जेव्हा जेव्हा देवाकडे दुरात्म्याशी शौलास बाधा होई तेव्हा तेव्हा दावीद वीणा घेऊन आपल्या हाताने वाजवीत असे. मग शौलास चैन पडून बरे वाटत असे व तो दुरात्मा त्याला सोडून जात असे. दुरात्मा त्याला सोडून, जाता से। the distressing spirit would leave. When और जो निराशा की आत्मा है वो छोड़ के चली जाती थी जब दाऊद वीणा बजाता था. hallelujah. हालेलुया. Two things very important. दो चीजें बहुत जरूरी हैं. Have company, fellowship with anointed people. और परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों के साथ सहभागिता रखिए. David was anointed. दाऊद जो था वो परमेश्वर का अभिषिक्त व्यक्ति If था. you want to get free from the spirit of depression in your life, अगर आप अपने जीवन में निराशा की आत्मा से छुटकारा चाहते हैं get in fellowship with anointed men and women of God. तो परमेश्वर के Hallelujah. जो अभिषिक्त दास और दासी है उनके साथ संगति And कीजिए begin to worship Him. और उसकी आराधना And as करिए. you begin to worship, और जैसे आप उसकी आराधना करते those हैं distressing spirit, तब वो जो निराश करने वाली the आत्मा है spirit that is giving you headaches, और जो आत्मा आपको सर दर्द देती है the spirit that is troubling you, वो आत्मा जो आपको परेशान करती है it will leave. वो चली जाएगी. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So we saw the reason why the devouring spirit enters. और हमने वो कारण देखे जिनके द्वारा जो नाश करने वाली आत्मा है वो हमारे जीवनों में प्रवेश And the करती है. remedy also we saw. और उसका जो निवारण है जो उपाय है वो भी हमने देखा. What is the remedy? और वो क्या है? उपाय क्या है? Get in fellowship with anointed people of God. ये पहला उपाय है कि हमको परमेश्वर के जो अभिषिक्त लोग हैं उनके साथ संगति करनी है And begin to worship. और उसकी आराधना करनी है. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Turn to the person next to you and say, worship is a weapon. और अपने पास वाले व्यक्ति की तरफ घूमकर बोलिए कि जो स्तुति आराधना है वो एक हथियार है. स्तुति आराधना हथियार है. Stuti Aradhana. हथियार है. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Can I tell you another secret? एक और रहस्य बताऊं. How many of you wanted to come to the church from yesterday? You decided I'm going to go to the church in the morning. आप में से कितने लोग आज सुबह की आराधना में आना चाहते थे? कल से तैयारी करके बैठे थे? सब तो सोचा होगा ना? नहीं? ऐसे आके बैठ गए. You decided, right? But how many of us came after the worship? आप सबने कल से तैयारी करी थी लेकिन आज कितने लोग आराधना के बाद आए? What was that? The devil was trying to, no, I'm not asking you to lift up your hand, I'm just telling you, the devil is trying to stop you from entering into worship, because the moment you enter into worship, everything that is oppressing you will leave. और आप आज आराधना के बाद आए इसलिए क्योंकि शैतान नहीं चाहता था कि आप स्तुति आराधना में समय बिताए और ताकि जो निराशा की आत्मा है वो आपको छोड़ के चली जाए. It's very, very important, dear people of God, ये बहुत जरूरी है प्रिय परमेश्वर के लोगों that we enter into a time of worship. कि हम आराधना स्तुति आराधना के समय में प्रवेश Because करें. it's only when you begin to worship you see breakthroughs. और वो तब हम छुटकारे को तभी पा सकते हैं जब हम स्तुति आराधना करेंगे. How many of we are worshiping? हम में से कितने लोग स्तुति आराधना करते How हैं? are we worshiping? हम कैसे आराधना करते That's हैं? very important. ये बहुत जरूरी है. How do we worship? हम कैसे आराधना How करते हैं should we worship? और किस तरह से करते हैं? How should we worship? What does the Bible say? परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमको किस तरह से उसकी आराधना करनी John चाहिए? 4:24. यूहान 4 उसका 24 वचन. यूहान 4 उसका 24 वचन. हाँ? पढ़िए जोर से. परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें. आमेन. How should we worship? हमें कैसे आराधना करनी है? देव आत्मा आहे हाँ. आणि त्याच्या उपासकांची त्याची उपासना आत्म्याने व खरेपणाने केली. How did we worship this morning? आज हमने कैसे आराधना की? How did you worship this morning? कैसे की आराधना? I don't know, because it's
your personal relationship with God, right? मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये आराधना का समय आपका परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत So संबंध when है। you come to worship Him, जब आप परमेश्वर की आराधना करने के लिए आते you हैं, should give the best worship to God. आपको परमेश्वर को उत्तम आराधना देनी है। Don't care what the neighbor does. आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपका पास में बैठा हुआ I व्यक्ति don't क्या कर रहा care है। what the other person is doing. आप मतलब मत रखिए कि वो क्या कर रहा है। I am here to get right with God. मैं यहाँ पे परमेश्वर के साथ अपना संबंध को सुधारने आया I'm हूँ। here to enter into His presence. मैं यहाँ हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर सकूं। What does the Bible say? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? This morning we read Psalms 100, right? आज हमने स्तोत्र 100 पढ़ा। Please turn to Psalms 100 स्तोत्र 100 निकालेंगे। and read verse 4. 4 वचन। Enter His gates with. थैंक्सगिविंग। So when you begin to give thanks and worship, जब आप धन्यवाद करके उसकी आराधना करना शुरू करते हैं, where are you entering into? आप कहाँ प्रवेश करते हैं? Where are you entering into? तब कहाँ प्रवेश करते हैं? जब हम धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में प्रवेश करते हैं। When you give thanks, you enter into His courts, into His presence. और जब हम धन्यवाद देते हैं तब हम उसके आंगनों में या उसकी उपस्थिति में प्रवेश And करते when हैं। you enter into His presence, और जब आप उसकी उपस्थिति में प्रवेश the करते हैं devil will have to leave. तब शैतान को जाना पड़ेगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Amen. 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 We thank God. We thank God for His Spirit, for His anointing, and for God's love that we can always get back to Him. और परमेश्वर की आत्मा के लिए, उसके अभिषेक के लिए धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह के लिए कि हम हमेशा उसके पास वापस जा सकते So it's very, very important, dear people of God, हैं। और ये बहुत ज़रूरी है प्रिय परमेश्वर के लोगों, that we need to be always on guard. We need to be always watchful. और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हमेशा सचेत रहें। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Do not give place to the devil. शैतान को अवसर मत दीजिए। When we run after anything other than God or anything else other than God is our first priority. और अगर कोई भी चीज़ हमारे परमेश्वर से पहला स्थान लेती है हमारे जीवन में, तो The devil gets an entry into our life. तो अब शैतान हमारे जीवन में प्रवेश करता है। Judas, Gehazi, money became their first priority, and the demonic spirit began to oppress them. और यहूदा और गेहाजी के जीवन में पैसे ने पहला स्थान लिया था और निराशा की आत्मा उनके जीवन में In प्रवेश the की। life of King Saul, और शाऊल के जीवन में disobedience. अवज्ञा, What happened because of that? और उसके कारण क्या हुआ? Distressing spirit came into his life. निराशा की आत्मा ने उसके जीवन में प्रवेश किया The spirit from the Lord left him. और परमेश्वर की जो आत्मा थी उसने उसको छोड़ दिया। If there is disobedience in your life, अगर आपके जीवन में अवज्ञा है, repent today. पश्चाताप करिए आज। Thirdly, तीसरी बात, the words that we speak. जो शब्द हम बोलते हैं, In Ephesians chapter 4 verse 27 onwards, if you read, it gives a big list of how we give place to the devil. और इफिस का रास 4 अध्याय और 27 वचन से। 27 वचन से आगे हम देखते हैं तो वो सारे शब्द के बारे में कहा है जो हमको इस्तेमाल नहीं करने Let not word, ungodly, unholy word come out of our mouth. हमारे मुंह से कोई भी अपवित्र शब्द नहीं निकलना चाहिए। When we gossip, जब हम जब हम एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, गॉसिप करते हैं, what are we doing? हम क्या करते हैं? We are opening the doorway for the devil. हम शैतान के लिए मार्ग खोलते हैं। When evil, ungodly communication comes out of our mouth, और जब जो अदैवी चीजें हमारे मुंह से निकलती है, that's what, right? Turn with me to Ephesians 4:29. इफिस का रास 4 अध्याय और 29 वचन। तुमच्या मुखातून कसले
कुछ के भाषण, right? कुछ के भाषण, what does that mean? हिंदी में क्या लिखा है? हाँ? Unwholesome talk. Any other language? Hindi? गंदी बात, कोई भी गंदी बात हाँ? नहीं निकलना. निकलता है? Corrupt word. So when corrupt word comes out of our mouth, जब हमारे मुंह से कोई भी अपशब्द या गंदी बात निकलती है, we are giving place to the devil. तब हम शैतान को स्थान देते हैं. You know why? आपको मालूम है क्यों? When you speak corrupt word, ungodly word, जब आप कोई अपशब्द या गलत बात अपने मुंह से निकालते the हैं, Bible says out of the abundance of your heart, mouth speaks. परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे मन की भरपूरी, हृदय की भरपूरी के कारण तेरे मुंह से वो शब्द निकलेंगे. So when you are speaking ungodly word, जब आप गलत शब्द अपने मुंह से निकालेंगे, what are you telling? आप क्या कह रहे हैं? My heart is filled with ungodly lives. आप कह रहे हैं कि मेरे हृदय में सिर्फ गंदी बात भरी हुई है. Your friends may speak ungodly language आपके जो मित्र हैं, आपके जो साथ में काम करने वाले हैं, वो गलत बात बोल सकते हैं, because they are not filled with the Spirit of God. क्योंकि वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा भरे हुए नहीं But हैं. you who are filled with the Spirit of God, लेकिन आप जो परमेश्वर के आत्मा से भरे हैं, how can ungodly talk come out of your mouth? आपके मुंह से गलत बात कैसे निकल सकती है? One day, I was going with my friend. He was driving his car. और एक दिन मैं अपने मित्र के साथ कहीं बाहर जा रहा था और वो कार चला रहा था. A man who knows the Bible from cover to cover. और वो व्यक्ति, उसको पूरी बाइबल अच्छे से आती है. We were driving. वो चला रहा था गाड़ी. Someone made a wrong turn. और एक व्यक्ति ने गलत मोड़ ले लिया. And you know what my friend did? और आपको मालूम है मेरे दोस्त ने क्या किया? Out of his mouth came rivers of gutter. और उसके मुंह से गंदा नाली बहने लगा. ऐसा गंदा शब्द, all these ungodly words from his mouth. और उसके मुंह से हर एक प्रकार के अदैवीय शब्द निकलने लगे. Whitewashed sepulchres. पुती हुई कब्रें. You know what does that mean? इसका मतलब क्या How है? many of you have gone to the Kabristan? आप में से कितने लोग कब्रिस्तान में गए हैं? गए ना? You would see very beautiful covers there. आप बहुत सुंदर सुंदर कब्रें देखेंगे वहाँ पर. Some tomb would have marble outlaying, right? और कुछ कब्रों के ऊपर तो संगमरमर भी लगा रहता है. But what is inside the tomb? लेकिन उसके अंदर क्या है? हड्डियाँ. If you dig it out, what will come? अंदर खोदेंगे तो क्या निकलेगा अंदर? बाहर एकदम सुंदर, अंदर हड्डियाँ. we Christians should not be like that. हम क्रिस्तियों को ऐसा नहीं होना चाहिए. Let wholesome words come out of our mouth. हमारे मुख से अच्छी बातें निकलनी The चाहिए. other person may say anything, but you have to speak only godly words. दूसरा व्यक्ति कुछ भी बोलने दीजिए, लेकिन आप केवल परमेश्वर के शब्द ही मुंह से निकालिए. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. I'll quickly show you one more thing. एक और बात बताता हूँ. Please turn with me quickly to Psalms 15, स्तोत्र 15 निकालेंगे. verse 1, 2 and 3. हे परमेश्वरा तुझ्या मंडपात कोण? Lord, who can abide in your tabernacle? मनापासून काय बोलतो? सत्य Speaks truth from the heart. अपने जीवेने चुगली कर. don't gossip or backbite. They are the people who will stand in the presence of God. Hallelujah. Hallelujah. ये जो लिस्ट दी है वही लोग हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहेंगे. Quickly I will share you, just give you an example of what happens
when the devil enters your life. और जल्दी से मैं एक उदाहरण दूंगा कि जब शैतान आपके जीवन में प्रवेश करता है तब क्या होता है. The thief comes to steal, kill and Destroy. destroy. शैतान चोरी घात व नाश करने के लिए When the आता है. devil got permission, the devil got permission to enter into the life of Job. और शैतान को परमेश्वर ने अनुमति दे दी कि वो अय्यूब के जीवन में प्रवेश करे. What did he do? उसने क्या किया? Destroyed his life completely. उसके जीवन को पूरी तरह से नाश कर दिया. That's what happens when the devil gets entry. और यही होता है जब शैतान को हम अंदर आने देते हैं. Dear people of God, प्रिय परमेश्वर के लोगों, we are in a spiritual warfare. हम आत्मिक युद्ध में हैं. You are victorious. आप जयवंत हैं. You have an anointing from the Lord. आपको परमेश्वर की ओर से अभिषेक मिला You हुआ have है. power and authority over the devil. आपके ऊपर शैतान के ऊपर विजय और अधिकार मिला हुआ Don't है. give place to the devil. शैतान को स्थान मत Don't दीजिए. give place to the devil. शैतान को स्थान मत Walk दीजिए. in the ways of God. परमेश्वर के मार्ग पर Let चलिए. wholesome words come out of your mouth. आपके मुख से अच्छी बातें निकलने पाए. Hallelujah. Hallelujah. Shall we all stand to our feet? हम सब खड़े हो जाएंगे. Thank you, Jesus.